Good afternoon, all of you, and here is an integral booster session. If you have still not subscribed the channel, please do it because we'll keep on getting content which usually you'll not find on YouTube. Okay, so let's start with the first question. If f of x is 5 to x, let's say 7, 9 ga square x, 3 gx minus x square. So f is written as another function of g. 1 minus that of 2, 4, 5, 2x square, 2, 9g square. Let's say 1x, 3g minus x square. And we have plus 2x0, 9g square, 3g minus x square, minus 2. Okay. And then we have 2x square, 1 and minus. So we have to find the minimum value of expression 0 to 1 f of x dx. Okay, where g of x is also a real valued function operating from real to real. G of x is a continuous function going from real to real. Okay. So how to solve this problem? अब ये एक तो blindly what you can do is इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू एक्सपेंड ऑल दिस थ्री डिटर्मिनेंट एंड देन यू कैन ट्राई. द अदर थिंग इज वी कैन बी लिटिल बिट स्मार्ट इन सीइंग दैट बिकॉज यू कैन सी 9g स्क्वायर 3g माइनस एक्स स्क्वायर 9g स्क्वायर 3g माइनस एक्स स्क्वायर 9g स्क्वायर 3g माइनस एक्स स्क्वायर सेम है. ठीक है, लाइक दैट इज अपियरिंग इन आइदर वन रो और वन कॉलम. अगेन वी हैव लाइक 7, 5 and minus 2 is different. What about other peculiarity in the expression? 1 to x square, we have 1 to x square, we have 1 and 2x square. So these things gives a hint of possibly maybe we can like try something. और कुछ दिख रहा है क्या same? Yeah, x into and we have x into. So you can clearly see like there are many terms for this determinant which is basically same. तो इसको आप एक हिसाब से लिख सकते हो. एक हिसाब से कैसे लिख सकते हो? जैसे if I try to club the determinant and into one of the expression. Okay, so if I interchange column twice for the first one, जैसे यहाँ पे we have 5, 7, 3 and 2x 9c square in this. So let's say first f of x what I'm writing 5, 7, 3. Let's keep the first one as still same 2, 9g square and we have 2x square x 3g minus x square and 1. ठीक है, अब दूसरे को भी हम समहाउ सेकेंड को भी हम इसी हिसाब से लिखना चाह रहे हैं जो नीचे में मेरा x 3g स्क्वायर बना जाए. सो इफ आई वांट टू ब्रिंग x एट द फर्स्ट प्लेस आई हैव टू इंटरचेंज फर्स्ट टू कॉलम, राइट? So we'll have x here in the first place and then we have 1 here in the second place and then we have 3g minus x square. Again we'll interchange 3g minus x square or 1. तो ऐसे हम 2 interchange if I'll do interchange column twice the determinant will actually be the same. तो सबसे अपन x को यहाँ पे लाया, so x2 and we have 4 and then first column will go to the second place 1 to x square and 2 and now we have 3g minus x square 9g square 5. So again I'm doing an interchange which I'm writing in one step. So 3g minus x square 9g square 5 and we have x2 4. So I hope this is clear. ठीक है, अच्छा one will come into the second place. So we have already 1. So finally what we are getting is x 2 4 after 2 column interchange 3g minus x square 9g square 5 और फिर लास्ट में आ गया 1 2x स्क्वायर 2. ये आप क्लियरली देख सकते हो हम क्या किए, फर्स्ट वाले को पुल करके थर्ड पोजीशन में ले गया. द मोटिवेशन वाज टू ब्रिंग x इन द फर्स्ट कॉलम. ओके, इन थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम टू ब्रिंग x. थर्ड रो सेकंड कॉलम में 3g माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड रो थर्ड कॉलम में 1. तो उसका रेसिपी वाज देयर. अब सिमिलरली थर्ड वाले को बताओ क्या करेंगे. अगेन x अगर हम फर्स्ट कॉलम में लाना चाहें तो सबसे पहले तो इसका ट्रांसपोज लेना होगा बिकॉज वी हैव x2 4 तो एक कॉलम में दिख नहीं रहा है. ठीक है, मोरेवर वी हैव 3g माइनस एक्स स्क्वायर एंड 9g स्क्वायर. 3g
minus x square 9g square is appearing in one of the column. Here also it is appearing in one of the column. So we want that to appear in again one of the column at the same position. But I want at this position to be occupied by 3g minus x square 9g square. But it is in the second row. तो सबसे पहले आई विल टेक ट्रांसपोज. आई नो द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज का डेट विल बी सेम एज दैट ऑफ ए. ठीक है, तो यहाँ से व्हाट आई कैन डू, अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो यहाँ से आई एम गेटिंग -2 9g स्क्वायर एंड 3g माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, और फिर अगेन विथ इंटरचेंजिंग रो ट्वाइस 0 2x and 1 2x square 1. So now life is very easy because you can see the second row जो basically है it becomes same for all of them. Okay, now since second row is same for all of them, hence I can use property of addition and subtraction of determinant. So you can add two matrix, each element of matrix in 3 cross 3 or in general n cross n can be added term wise. ठीक है, लेकिन जब मेरे पास that है तो दो कॉलम सेम होना चाहिए, तब आप फर्स्ट कॉलम में या फर्स्ट रो को टर्म बाई टर्म ऐड कर सकते हो. तो अब यहाँ दो कॉलम सेम हो गया, अब मैं ऐड कर सकता हूँ 5 + 4 9 9 प्लस 5 - 4 हो गया, तो 1 1 + 0 1, तो यहाँ 1 एंड दैट विल गेट 7 - 5 2 - 2 0, दैट्स कूल. 1 - 1 0. तो देखो अब ये कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो गया. 1 0 0 9g स्क्वायर 2x स्क्वायर x 3g माइनस एक्स स्क्वायर 1, which evaluates to 9g square minus 6x square g plus 2x4. ठीक है, अब ये काफ़ी एक अच्छा क्वेश्चन हो गया क्योंकि नाउ वी हैव अ फंक्शन f of x given by 9g square can be written as 3g of x whole square. Okay, and that demands minus 6g, so minus 2a bits, 2 times of 3 times of gx, a square minus 2a इंटू बी के जगह पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है. सो आई विल ऐड एक्स स्क्वायर स्क्वायर एंड आई विल सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर स्क्वायर, सो दैट विल बिकम अगेन एक्स. आई होप दिस इज क्लियर. तो यहाँ से जो आपका एक्सप्रेशन बनने वाला है वो बन गया 3gx माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x4. सो इंटीग्रली 0 to 1 3gx माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस x4 dx. Now since I wanted minimum integral value, अब minimum के लिए of course this has to be 0 because greater than equal to 0 g of x is a set of continuous function from that set. तो minimum possible कब होगा, जब 3gx minus x square 0 हो जाए. It means corresponding to gx equal to x square by 3 I'll get the minimum value of integral 0 to 1 fx dx, और वो आंसर आएगा 0 to 1 x का पावर 4 dx. that will give 1/5. So the answer for this problem is 1/5 corresponding to a continuous function gx which is given by एक्स स्क्वायर बाई 3. सो टेक अवे फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. अब जब कभी आपको मिनिमम फाइंड करना होगा तो आप परफेक्ट स्क्वायर कर लो व्हेन फंक्शन इज अननोन. ठीक है, अब समटाइम्स क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछ देगा, लेट्स से इफ a to b एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 2 dx, दिस हैज़ टू बी मिनिमम. ओके, दिस हैज़ टू बी मिनिमम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b. So now it feels like it's two variable question, like if you directly evaluate, so you can calculate, let's say this integral is I, so you can differentiate partially with respect to a, again we can differentiate partially with respect to b, from there you'll get critical point, solve कीजिए और a और b का वैल्यू निकाल लीजिए मिनिमम और मैक्सिमम के लिए. एक तो वो मेथड हो सकता है. एक दूसरा मेथड होगा जो एक्स इसको इंटीग्रेट ही कर लो, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 विल गिव b माइनस ए क्यूब बाई 3. ठीक है, माइनस 3 टाइम्स b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 2 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सॉरी. तो दैट विल गिव b क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, b क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3. दूसरा आएगा माइनस 3 टाइम्स b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस 2 टाइम्स b माइनस. And now again, like you can use this partial derivative to find the ideas, or you try to make perfect square or perfect cube in such a fashion so as to minimize. लेकिन there is a very cool way of doing this, and आसान तरीका है इसको करने का ये. अगर आप इस फंक्शन को देखो तो ये तो इसका रूट is already 1 and 2. So if it is root is 1 and 2, I know the graph of function will look like this. ठीक, तो अब if I take any point a and b, suppose
एनी पॉइंट ए एंड बी. ओके, फॉर दिस इंटीग्रल टू बी मिनिमम आई वांट इट एज लेस एज पॉसिबल, मतलब निगेटिव मैक्सिमम निगेटिव हो सके या फिर जीरो हो सके. If it is not negative, a and b if I'm taking here, I'll get some positive answer, right? So for negative answer clearly a has to be 1 and b has to be 2. ओके, क्योंकि a और b अगर मैं 1 और 2 ले लूँ तो फिर जो भी इंटीग्रल का आंसर आएगा वो तो मैग्नीट्यूड वाइज नेगेटिव ही हो जाएगा, मीन्स इंटीग्रल भी नेगेटिव, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ. ओके, नाउ इफ समवन टेक्स a over here and let's say b even little bit there also, then now since in this area you are adding some positive answer, so it will always be lesser than 1 to 2. Any value of a and b will always give an area more than 1 to 2 that function f of x. Is this clear? अब सपोज कोई a यहाँ पे ले लिया, b यहाँ पे ले लिया, तो स्टिल यू आर एडिंग दिस एक्स्ट्रा एरिया, तो इससे तो आंसर ज़्यादा ही हो जाएगा. तो यहाँ पे दिस वाज वेरी नाइस, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 विल बी द आंसर करस्पॉन्डिंग टू दिस विल गेट मिनिमम. अब क्वेश्चन का और इंटरेस्टिंग वो बनाया जा सकता है, क्योंकि आपको a टू बी ई टू द पावर लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 3x कर दिया इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx एंड देन दे आस्क यू टू फाइंड द मिनिमम. ठीक है, अगर जे एडवांस वाला तो फिर यू नो दिस इज ऑलरेडी गेटन इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये मिनिमम तो तब आएगा, फिर किस वैल्यू पे मिनिमम आएगा, डेल आस्क, दे विल नॉट आस्क यू टू फाइंड द मिनिमम, क्योंकि देन यू हैव टू इंटीग्रेट. ठीक है, अंटिल द क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटीफुल और इंटीग्रेशन आसान हो जाए. तो फिर आई नो लाइक दिस क्वांटिटी, तो इसका ग्राफ लगभग इसी का जुम्ड स्केल होगा. इट विल नॉट एग्जैक्टली बी लाइक क्वालिटी बिकॉज यू आर मल्टीप्लाइंग विद ई टू द पावर एक्स, सो इट विल एक्सपेंड मोर or maybe symmetricity will be lost. But one thing is sure, from 1 to 2 I still will get negative portion. ठीक है, तो even for the minimum value of the answer, जो आंसर आएगा corresponding to a equal to 1 and b equal to 2 ही आने वाला है इसके. So I hope you have understood and enjoyed this problem. So this is how you tackle this problems. Let's move to the third one. और फिर again new variety of problems. अगर मैं आपसे पूछूं तो सपोज ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज ऑलरेडी गिवन टू यू. ओके, सो लेट्स से इफ एफ ऑफ एक्स इज नोन टू मी विच इज गिवन बाय 2x क्यूब and minus 3x square and minus x plus 3/2. If this is function and the function is defined from real to real, this calibration has to be mentioned in the question. So the question is 1 to 8 to 7/8. You have to integrate f of x dx. Now clearly आप इस इंटीग्रेशन में देख सकते हो जो कुछ ट्रिक तो ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू फाइंड f of x. f of x if you find, then you'll get 2x cube minus something का होल क्यूब माइनस 3 times होल स्क्वायर, सो you'll get 9 डिग्री एक्सप्रेशन. अब 9 डिग्री एक्सप्रेशन को तो वापस से आप इंटीग्रेट नहीं करोगे. ठीक है, तो डेफिनेटली दैट मेथड 1 इज़ नॉट अ लॉजिकली गुड वे ऑफ डूइंग दिस. मेथड 2 हिंट इज कमिंग फ्रॉम हियर. व्हाट इज 1/8 and 7/8 summation? Okay, natural way of doing unnatural problems of integration is to use King's rule. तो इसका समेशन 1 आ रहा है, दिस प्लस दिस इज 1, 1/8 प्लस 1/8. तो वहाँ से एक हिंट आ रहा है, जो आई को अगर हम किंग्स रूल अप्लाई करें, so 1/8 to 7/8 will become f of 1 minus x. ठीक है, so that tempts us to relate f of x with f of 1 minus x. तो अब देखो, अब यहाँ पे भी seeing the जेई सेंस ऑफ प्रॉब्लम आई विल टेल, आप अगर इसको ऐड करोगे तो क्या होने वाला है, 2i इज गोइंग टू बी 1/8 to 7/8 f of x प्लस f of 1 minus x. ठीक है, दिस dx. So again we are tempted to think of f of some function t प्लस f of, देख रहे हो ना यहाँ पे क्या रहा है, अगर ये t है तो ये f of 1 minus t टाइप का एक्सप्रेशन है. ठीक है, where t is f of x and f of 1 minus f of x. तो फिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ, जो f of x प्लस f of 1 minus x, if I'll get some kind of relation between them, so maybe I'm able to solve. तो वो मेरा thought process generate होगा.
तो यहाँ से जो थॉट प्रोसेस है, इनफैक्ट ये सेकंड वाला क्या जाएगा, रिप्लेस एक्स विथ ए माइनस बी इंटू एक्स. सो एक्स विल बी रिप्लेस विथ एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एफ ऑफ वन माइनस एक्स. हाँ, तो ये सही है. तो यहाँ से जो आपका केस जो बनने को मिला, ठीक है, सो दैट इज एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वन माइनस एक्स. तो अभी देखो, तो अभी अगर मैं एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वन माइनस एक्स को रिलेट करना चाहूँ, तो अब या तो दो चीज़ होगा, हो सकता है ये ऐड करके कुछ 0 हो जाए, 1 हो जाए या 2 हो जाए, कुछ इस टाइप का सिचुएशन जनरेट होने वाला है. सो आई डोंट नो. एक तो मैं ब्लाइंडली आई कैन ऐड एफ ऑफ एक्स विथ एफ ऑफ माइनस एक्स, फिर वन माइनस एक्स आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम हेयर और उससे मैं इसको ऐड कर सकता हूँ. ठीक है, एक तो वो तरीका है. दूसरा तरीका है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स को अगर मैं साई ले लूँ, सपोज साई ऑफ एक्स, दिस इज अ क्विक वे. ठीक है, मेथड वन आई टेल फ्रॉम हेयर. एक तो आप डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स इज गिवन, तो कैलकुलेट एफ ऑफ वन माइनस एक्स और फिर एक्सपेक्ट सम मैजिकल रिजल्ट जैसे 0 1 कुछ इस टाइप का. दूसरा तरीका है, इस फंक्शन को तुम ले लो, बिकॉज कैलकुलेटिंग फिर थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्यूब है. तो व्हाट इज साई डैश एक्स? इट इज एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश वन माइनस एक्स. अब व्हाट इज एफ डैश एक्स, वो कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि देयर इज 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1. ठीक, तो दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 आ गया. एंड एफ डैश वन माइनस एक्स क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 6 इंटू वन माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू वन माइनस एक्स एंड प्लस 1 हो जाएगा. ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस 1 1 गॉन. सो विल हैव 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर एंड माइनस 6x प्लस 6 माइनस एक्स. तो यहाँ से आपका बना 6 इंटू ए माइनस बी विल गिव एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ओके, इंटू ए प्लस बी विच इज़ गिविंग यू 1. सो माइनस 12x प्लस 6. तो यहाँ से आप देखिए, अगर यहाँ से 6 इंटू 2x माइनस 2 आ गया. ठीक है, व्हाट वी आर गेटिंग 2x माइनस 1 and minus 12x plus 6, so which is 12x minus 6 minus 12x plus 6 and which dies and which becomes 0. and that's interesting. it means psi dash x is 0, मतलब psi of x तो कांस्टेंट होने वाला है. ठीक है, इसका मतलब f of x plus f of 1 minus x जो है वो कोई कांस्टेंट लैम्डा होगा for any x. now smartly I'll put x equal to 0. तो x equal to 0 पे f of 0 will be 3/2 to get that constant. तो f of 0 will give 3/2 plus f of 1 is lambda. So this is 3/2. and what is f of 1? You can put f of 1, 2 minus 3 minus 1 plus 3/2. so that is minus half. ठीक है, so minus half. so what we are getting 2/2 is 1. इसका मतलब from here we identify f of x plus f of 1 minus x is going to be 1. and that's a great thing. क्यों? क्योंकि now if I replace, I want to create f of x. तो अगर मैं x को f of x से रिप्लेस कर दूँ, सो विल गेट f of x प्लस f of 1 माइनस f of x इक्वल टू 1. अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट डायरेक्टली व्हाट दिस समेशन इज, इट इज टेलिंग f of 1 माइनस x. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना होगा, अब सेकेंड केस में मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे f of x is given to be, if I plug this side, 1 minus f of 1 minus x, and now you take f of x, take function on both sides, so it will be f of 1 minus f of 1 minus x. ठीक है, is this clear? but I know again f of 1 minus f of x जो भी आएगा वो तो 1 minus f of x आ जाता है फर्स्ट रिलेशन से. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर लूँ, सो व्हाट आई एम टेलिंग इज फ्रॉम द फर्स्ट रिलेशन f of 1 माइनस f of x. यू कैन डू इट अदरवाइज ऑल्सो, आप सिंपल तरीके से भी और कर सकते हो. जस्ट अभी ये आइडिया आया, सो आई एम टेलिंग. नाउ यू रिप्लेस x विथ 1 माइनस एक्स, सो वी गॉट f of 1 minus x इक्वल टू 1 माइनस f of 1 माइनस x. अब ये तो ऑब्वियस था ओरिजिनल क्वेश्चन से भी.
तो अब देखो ये एग्जैक्टली इस चीज़ को जो है, इस चीज़ को आई कुड राइट 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। क्लियर? तो यहाँ से आ गया अपने पास f2x कंपोजिशन ऑफ x 2 टाइम्स प्लस कंपोजिशन ऑफ f2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल्स 1। दैट्स अ ग्रेट रिजल्ट। तो ये करने के बाद ये क्वांटिटी तो जस्ट 1 dx लिखा हुआ। तो फाइनल आंसर जाएगा 7/8 माइनस 1/8 which is 6/8 which goes to 3/4 but I becomes 3/8. So the answer to this problem was 3/8. तो एक अच्छा क्वेश्चन था जहाँ पे बहुत ही स्मार्टली किंग्स रूल को इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आप ऐसा सोच सकते हो। Let's try the next problem. And the next problem, as usual, many times the smartness of problem lies in the invertible function. ठीक है, तो एक इन्वर्स फंक्शन का क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज इफ आई डिफाइंड इंटीग्रल ऑफ एच ऑफ एक्स डी एक्स एज सम एफ इनवर्स एक्स। एक्चुअली इस टाइप से डेफिनेशन से बेटर है इफ आई डिफाइन डी वाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इफ आई डिफाइन आई हैव टू टेक सम लैम्डा और मे बी लैम्डा ऑपरेटिंग एफ इनवर्स। सो बेटर सपोज if I define the derivative of f inverse x as h of x and f of x is given as x cube plus x plus sine 2 pi x plus 2, then we need to find the value of integral 2 to 4 x times h of x dx। ठीक है, अब तुम ध्यान करो h of x dx क्या है, ये कुछ नहीं है बट डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स लिखा गया है। ठीक है, सो दिस डी एक्स का आपको वैल्यू फाइंड करना। तो अब ये क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि यहाँ से आप क्या करोगे ना, सबसे पहले आप तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इस पे लगा लो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओगे तो एक्स टाइम्स आई विल इंटीग्रेट दैट सो दैट विल बिकम एफ इनवर्स एक्स फ्रॉम 2 to 4 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विच इज 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4। ठीक है, उसका इंटीग्रल, सो एफ इनवर्स एक्स डी एक्स हो गया। तो फर्स्ट पार्ट इज इजी टू हैंडल, सो व्हाट आई यूज्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स IBP। फर्स्ट पार्ट इज 4 टाइम्स एफ इनवर्स 4 माइनस 2 टाइम्स एफ इनवर्स 2। सेकेंड पार्ट को अब मैं फिर से कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि एफ इनवर्स एक्स को आई कैन पुट सम टी, सो एक्स इज एफ टी डी टी, एक्स इज एफ टी, सो डी एक्स इज एफ डैश टी डी टी। तो यहाँ से एफ इनवर्स एक्स को टी किया, डी एक्स को एफ डैश टी डी टी किया। ठीक है, अब एफ इनवर्स एक्स इज टी, सो एक्स इज 2, सो एफ इनवर्स 2 इज टी। ठीक है, सो वी वांट द वैल्यू ऑफ टी फॉर विच so f inverse 2 is t, so 2 is f of t। तो अब यहाँ पे t का वो वैल्यू देना होगा t इक्वल टू t1 such that f of t1 becomes t। यहाँ पे t इक्वल्स t2 देना होगा such that f of t2 becomes 4। ठीक है, एंड इट मीन्स यहाँ पे f इनवर्स 4 और f इनवर्स 2 का वैल्यू निकालना होगा। तो अब ये प्रॉब्लम में बस वही बचा क्योंकि रेस्ट तो हमको समझ में आ गया क्या करना है। तो सबसे पहले एफ इनवर्स 2 निकाल लेते हैं। अब तो फंक्शन को ध्यान से देखो, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्लियरली एक्स 0 पे जो आने वाला है ये फंक्शन 2 देने वाला है। ठीक है, और 1 पे आप देख सकते हो 1 पे 1 प्लस 2 साइन 2 पाई 0 हो जाएगा, 1 पे 4 देगा, 1 पे 4 देगा। अब इस टाइप के प्रॉब्लम में आप आसानी से ये पॉइंट गेस कर सकते हो क्योंकि इसको सॉल्व करना इफ विल टेक दिस इक्वल्स 2। ठीक है, तो फिर 2 कैंसिल हो गया तो इसको 0 होना होगा क्योंकि 1 इज अलजेब्राइक का देयर इज ट्रिग्नोमेट्री। तो आप गेस से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगेन सम ऑफ यू माइट टेल हाउ यू आर श्योर ये 1 फंक्शन है क्योंकि आप इन्वर्ट कैसे किया। अब ये तो क्वेश्चन सेटर वाले को गारंटी करना होगा। सो जब 3x² प्लस 1 प्लस वो हो जाएगा 2 पाई कॉस 2 पाई एक्स। ठीक है, तो अब ये जो इंटरवल में डिफाइन किया गया है 2 to 4 के इंटरवल में या फिर 0 के 2 to इंटरवल में, तो आप चेक कर सकते हो ये इन्वर्टेबल है। अगर वो इन्वर्टेबल नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, 1 1 1 2 नहीं है, तो फिर क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो तो क्वेश्चन सेटर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ये इन्वर्टेबल होगा ही अगर वो पूछ रहा है तो।
तो फिर एफ इनवर्स 4 आपको पता चल गया, क्योंकि 4 पे वापस एफ इनवर्स मशीन जो होगा वो 1 देगा और 2 पे 0 देगा। ओके, सो एफ इनवर्स 4 इज़ 1 एंड एफ इनवर्स 2 इज 0। तो ये क्वांटिटी तो 4 हो गया फर्स्ट वाला। अब दूसरा भी ठीक है, 2 पे जो आने वाला है वो 0 हो जाएगा और वो 1 आएगा। इट मीन्स नाउ क्वेश्चन इज जस्ट 4 माइनस इंटीग्रल 0 to 1 t टाइम्स एफ डैश टी डी टी। अब दिस इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो t को छोड़ो और इसको इंटीग्रेट करो। सो t ऑफ एफ ऑफ टी फ्रॉम 0 to 1 माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एफ ऑफ टी डी टी। तब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जाएगा एफ ऑफ 1 टाइम्स 1 माइनस 0 टाइम्स एफ ऑफ 0 minus 0 to 1 and f of t they have given x cube plus x plus sine 2 pi x plus 2 dx or 2 t dt whatever if you want। अब दिस इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल, क्योंकि टर्म बाई टर्म आप इंटीग्रेट कर सकते हो। ये वैल्यू ऑलरेडी एफ ऑफ 1 पे आपको पता है, 1 पे जो वैल्यू आने वाला है वो 4 आने वाला है, ये तो 0 होगा, तो 4 माइनस समथिंग ये आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको इवैल्यूएट करोगे तो फाइनल जो आंसर आएगा, अब जस्ट दिस सिंपल इंटीग्रेशन यू हैव टू डू एंड वंस विल डू सिंपल इंटीग्रेशन, जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो 11/4 बन के आ रहा है। तो आप ये चेक कर सकते हो, द फाइनल आंसर विल गेट इज 11/4। सो आई होप you have understood how to handle the inverse function. Now एक JEE Advanced का previous year problem if you'll see, they have given if h of x is inverse, h of x करके डेरिवेटिव पूछ रहा था। तो कुछ नहीं है उसमें, आपको बस कोई भी प्रॉब्लम ऑफ इन्वर्स का है, अगर इंटीग्रेशन आए तो यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अगर डिफरेंशिएशन आए तो अगर इफ़ f इनवर्स x इज द इनवर्स ऑफ f of x एंड लेट्स से इफ आई कॉल h of x एज f इनवर्स x, तो आई नो f of h of x is going to be x, at least for the domain in which it is defined, and similarly h of f of x जो होगा वो भी x हो जाएगा, because if f is inverse of other function, the other function is also inverse of that. Okay, so h of f of x is also x identically, मतलब ये composition commutative है। ठीक है, f of g fog will be f of f inverse is f inverse of f and is equal to x। ठीक है, of course within the domain of the function for all f x within the domain। तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जैसे देखो इसको f डैश h ऑफ x कर दिया, चेन रूल से h डैश x जो होगा वो ऑलवेज 1 होगा, और फिर जो पूछ रहा है वो तुम गिवन इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, क्योंकि मेनी टाइम्स दे आस्क द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, सो यू डोंट हैव टू एक्चुअली कैलकुलेट इनवर्स फंक्शन, आप ये चेन रूल लगा के उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो। ज्योमेट्रिकली भी इसका एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ each other along line y equal to x। तो अगर एक का स्लोप at x equal to a if the slope of the function is m, ओके, सो इन्वर्स फंक्शन के लिए एफ ए पे स्लोप जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/m हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप जो होगा वो उल्टा हो जाएगा वहाँ पे। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सपोज एक कोई फंक्शन है y equal to f of x, क्लियरली बाइजेक्टिव होना होगा इस इंटरवल में, और तो इसका ये इन्वर्स फंक्शन हो गया। तो लेट्स से ज्योमेट्रिकली आप फील कर सकते हो एट x इक्वल टू a आउटपुट जो आएगा विच इज f ऑफ a। सो फॉर इनवर्स फंक्शन एट x इक्वल टू f a आउटपुट a आने वाला है, राइट। सो दिस पॉइंट विल बी f ऑफ a पे आउटपुट a। तो यहाँ पे सपोज इफ यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ इनवर्स फंक्शन, यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे, तो यहाँ पे वाट एवर स्लोप विल कम, लेट्स से ये m है, और यहाँ पे जो स्लोप आएगा ग्राफ का, ठीक है, दिस एंगल इज लेट्स से थीटा। आप सिंपल ज्योमेट्री से इसको चेक कर सकते हो, फाई और थीटा में रिलेशन, ठीक है ना, क्लियरली दिख रहा है इनफैक्ट फाई और थीटा में रिलेशन। तो आप उसे चेक करके अगर ये स्लोप m होगा तो ये स्लोप 1/m हो जाएगा, और वाइस वर्सा, इफ दिस स्लोप इज m then this slope will be 1। so you don't have to calculate actually function in order to find the slope। इंटीग्रेशन भी ऐसे ही वर्क करता है, बिकॉज इफ आई टेक let's say some y equal to x line and we have got an inverse function like this a to b तक, तो इसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो अपने पास आएगा यहाँ पे f of a to f b में। so if you'll see the area bounded by f of x between a to b is same as area bounded by f inverse x from f a to f b।
आइसोमेट्रिसिटी, ठीक है। तो इसीलिए जब आप इसके एरिया को ये पूरा एरिया हो गया ना, इसको जब तुम ऐड करते हो ना इसके इनवर्स के साथ, तो ये टोटल एरिया आ जाता है b टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस ए टाइम्स एफ ऑफ ए। एरिया ऑफ दिस बिग स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर हो जाता है दोनों एरिया को ऐड करने से, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखो इनवर्स का एरिया जो है वो ये है साइडेड रीजन, और फंक्शन का एरिया जितना यहाँ पे है वही यहाँ पे लेफ्ट ओवर है, तो ये दोनों ऐड हो गया। इट मीन्स एफ इनवर्स एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का जो एरिया होने वाला है, ठीक है, ए टू बी से, ये कुछ नहीं है, दिस इज द साइडेड एरिया। तो दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस बिग रेक्टेंगल विच इज बी टाइम्स एफ ऑफ बी। ये है ना, ये फंक्शंस का जो भी हो, तो ऊपर वाले का माइनस ए टाइम्स एफ ऑफ ए, सो इट्स बेसिकली डिफरेंस बिटवीन दीज रेक्टेंगल्स। तो ये इंटरेस्टिंग एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है which is again this can be proved very easily by integration by parts which fundamentally I have done in the previous question. So I hope इंटीग्रेशन से इन्वर्स का जो भी क्वेश्चन है वो आप आसानी से अब इस आइडिया से सॉल्व कर सकते हो। अब कभी कभी इंटीग्रेशन को AOD से कंबाइन कर देगा, यूजुअली आई गिव AOI combined with AOD, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल combined with एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इस टाइप के क्वेश्चन भी वेरी फेमस है। जैसे सपोज इफ एफ बी अ रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन R to R, ठीक है, such that f dash x is given, f dash x is 100 times x minus 1 x minus 2 whole square x minus 3 whole cube blah blah blah, let's say x minus 100 का पावर 100 for x belonging to real। तो एक ऐसा फंक्शन है, सो दैट इज डेरिवेटिव इज गिवन, ओके, एफ डैश एक्स इज गिवन। आपसे पूछ रहा है जी इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन आर, सो जी इज अनदर फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर सच दैट इंटीग्रल ऑफ ए टू एक्स ई टू द पावर एफ टी डी टी इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ 0 to x जी एक्स माइनस टी डी टी plus 2x plus 3. Now the question is find the sum of all values of x for which gx has local extremum. So sum of all values of x such that g of x has local extremum. Now again J wala can give you in a nice, consider two functions and they can define a set notation so that the question looks more attractive. Okay? I have created those kind of attractive presentation of the problem in my book, जो कि कुछ दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा। By the way, I am keeping some questions from my book also. ये questions नहीं है कि ये तो standard question available at many sources है, ठीक है। Anyway, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? अब क्लियरली आप देख सकते हो, जो since g of x has local extremum, तो I think of first g dash x equal to 0. Extremum means it can be point of minima और point of maximum, दोनों हो सकता है। और फिर ऐसा भी हो सकता है g dash x 0 हो जाए बट स्टिल इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ मिनिमा और मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे x क्यूब के कॉन्टेक्स्ट में g dash x is 0 at x equal to 0 but x equal to 0 is neither a point of minima or maximum because the function derivative is still positive. Okay, so g dash x equal to 0 does not guaranteed means you will have a minima or maximum point, ठीक है। वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है जहाँ पे ना मैक्सिमम और मिनिमम है, तो आपको चेंज करना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन। अब जब साइन भी आप चेक करते हो तो मेक श्योर द फंक्शन इज नॉट बिहेविंग वेरी बैडली, लाइक साइन 1/x जैसा तो नहीं बिहेव करने लगा, क्योंकि साइन 1/x जैसा बिहेव करने लगेगा तो अराउंड 0 तो आपको ये बहुत ही खतरनाक सा पिक्चर दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं है क्योंकि फंक्शंस नाइसली बिहेव्ड है, ई का पावर एंड पोलिनोमियल फंक्शन। तो सबसे पहले तो आप पहले डिफरेंशिएट कर दो इस एक्सप्रेशन को g dash x 0 करने के लिए। तो अब लिबनीज रूल एकमात्र हथियार है, लेकिन अब प्रॉब्लम है लिबनीज रूल से दिस इज स्टिल नॉट अ प्योरली अ फंक्शन ऑफ x, राइट।
Okay, so suppose if you have x e का पावर माइनस टी 0 टू x dx, तो आप इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये तो x dx है. इसमें क्या करोगे, e का पावर माइनस टी को पहले बाहर ले जाना होगा एंड फिर 0 टू x डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे. सो e का पावर माइनस टी एक्स स्क्वायर बाई 2. आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल. ऐसे करते हैं, ठीक. तो यहाँ पे व्हाट विल डू, अब यहाँ पे द फर्स्ट पॉइंट इज g इज़ नॉट प्योरली अ फंक्शन ऑफ t. ये तो x के साथ है. सपोज g ऑफ x बिकम साइन x सपोज, तो ये तो साइन x माइनस टी है, तो आइदर साइन ए कॉस बी करके आप एक्सपेंड करो फिर से इंटीग्रेट करो. तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज किंग्स रूल, क्योंकि किंग्स रूल से आई कैन मेक इट प्योरली फंक्शन ऑफ टी. सो रिप्लेस t विथ a प्लस बी माइनस एक्स माइनस 3 एंड दैट बिकम्स नाउ प्योरली अ फंक्शन ऑफ t प्लस 2x प्लस 3. सो नाउ आवर लाइफ इज गुड. a टू x e का पावर f dt. So here I am taking differential of this. So e to the power f of x using Leibniz rule is g of x plus 2 हो गया, ठीक है. तो g of x का वैल्यू जो आया वहाँ अपने पास e of f of x माइनस 2. लेकिन मुझे g डैश x फाइंड करना है, तो इसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं. g डैश x is e का पावर f of x into f डैश x. अब टू फाइंड एक्सट्रीमम ऑफ g डैश मीन्स g, वी हैव टू मेक श्योर g डैश x इज 0. अब उसके लिए f डैश x को 0 होना होगा, बिकॉज दिस इज e टू द पावर समथिंग इज नेवर 0, ठीक है. तो अब साइन ऑफ g डैश x विल बिकम completely depend on sign of f dash. अब f dash they have given, probably they could make better question by giving f of x. फिर वहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करके फिर उसको एनालाइज करो, या फिर ऑल्स थ्योरम को भी मिक्स करके एक अच्छा और बेहतर क्वेश्चन बना सकता है. बट एनीवे लेट्स ट्राई दिस. तो f डैश x का आप साइन स्कीम हम कैसे देखें, तो दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट विथ वेविकर मेथड, आप देख सकते हो. तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट इज 1 2 3, जहाँ पे f डैश x मर रहा है 4 करते करते 99 100 आएगा, ठीक है. मोर देन 100 क्लियरली यू कैन चेक, ऑल वैल्यूज विल बी पॉजिटिव. 100 इज कमिंग फ्रॉम इवन सोर्स, ठीक है. तो 100 कहाँ से आप अपने पास आ गया, 100 तो इवन सोर्स से आ रहा है ना, तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, वो तो पॉजिटिव होगा. तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है. फिर 99 देखो, तो यहाँ पे तो साइन सेम रहने वाला है 100 पे. अब 99 इज कमिंग फ्रॉम ऑड सोर्स, ऑड सोर्स मीन्स x माइनस 90 का पावर 99. सो 98 से 99 के बीच में साइन विल फ्लिप. फिर 98 इवन है, साइन वही रहेगा. फिर 97 पे जाएगा, अगेन 97 से 96 साइन फ्लिप करेगा. मीन्स वेन एवर वी हैव ऑड साइन विल चेंज, और जब इवन है साइन वही प्रिजर्व रहेगा, ठीक है. तो ऐसे ही दिस विल कंटिन्यू. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब बताओ लोकल एक्सट्रीम मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ कहाँ आकर कर रहा है. तो कोई भी इवन पॉइंट पे तो अकर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो इवन पे 100 पे तो नहीं हुआ, बिकॉज 100 से पहले डेरिवेटिव एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है पॉजिटिव है, 100 से बाद में भी पॉजिटिव है. मतलब अगर मैं फंक्शन एफ ऑफ एक्स को देखूँ एट एक्स इक्वल टू 100, तो स्लोप आफ्टर 100 इज स्टिल पॉजिटिव, स्लोप बिफोर 100 इज स्टिल पॉजिटिव, बट स्लोप एट 100 इज 0. इसका मतलब 100 इज नाइदर द पॉइंट ऑफ मिनिमम मैक्सिमम. सेम लॉजिक आई कैन गिव फॉर 98. तो ये सब प्रॉब्लम जितना भी इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स है ये तो गए यहाँ से पिक्चर में. इट मीन्स एक्सट्रीमम पॉइंट विल बी 1 3 5 7, ऐसे करते करते 99 ओनली. वी आर द ओनली ऑड पॉइंट्स विच आर पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमाज. अब स्टिल अब 99 वेदर इस पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम, चलो ये भी चेक कर लेते हैं. तो 99 से जो भी फंक्शन होगा, सपोज 99 पे कुछ फंक्शन हुआ होगा, 99 से ऊपर फंक्शन इंक्रीजिंग है, 99 से जस्ट पीछे फंक्शन डिक्रीजिंग है, बिकॉज एफ डैश एक्स इज नेगेटिव. सो 99 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. तो 99 जो आ गया वो मिनिमा आ गया, बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव स्लोप टू पॉजिटिव स्लोप, मतलब फर्स्ट डिक्रीजिंग देन इंक्रीजिंग. 97 पे देख लो, पॉजिटिव स्लोप से नेगेटिव जा रहे हैं, तो पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा था फिर डिक्रीज कर रहा था. 97 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो अल्टरनेट मिनिमा मैक्सिमा आना शुरू हो गया, अल्टरनेट मिनिमा मैक्सिमा शुरू आना हो गया, ठीक है. तो अब लोकल एक्सट्रीमास जो है वो मिनिमा और मैक्सिमा जो है, अगेन दे कुड हैव मेड बेटर क्वेश्चन, तो सिर्फ दे कुड हैव आस्क्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो मिनिमा मैक्सिमा मिला के 99 97 95 प्लस सम ऑफ ऑड नंबर्स प्लस 3 एंड 1, ठीक है. तो यहाँ पे आपको 50 ऑड नंबर मिलेंगे और 50 इवन थे, तो 50 स्क्वायर विच इज 2500 इज आंसर, ठीक है. अब इफ दे लास्ट जस्ट सम ऑफ मिनिमा, तो फिर 99, ठीक है, फिर 95 ऐसे करके आएगा.
तो हाफ नंबर भी लेस टिल गो. इट डज नॉट मीन्स 1250 विल आंसर, वो आप चेक कर लेंगे. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टूड आप कैसे लिबनीज रूल को फिर एसोसिएट करते हो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एंड देन हाउ वी अप्लाई टू सॉल्व बेसिक क्वेश्चंस. ठीक है. चलो और क्वेश्चन देखते हैं. और तो एक क्वेश्चन यहाँ से फिर मैं ले सकता हूँ जिसमें आपको सपोज एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल सच दैट, आपसे पूछ रहा है जो एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर. ओके. तो एफ ऑफ एक्स एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो विच बिहेवियर इज दिस, कोई भी वैल्यू पे उसका डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड इज मोर देन इज लेसर देन और इक्वल टू द फंक्शन. तो फिर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल. ऑप्शन ए इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. So there exists some x for which this will be true, some x belonging to real form. Option B, f of x equals minus sin x minus 2. Again there exists some x sorry in the real for which it is true. F of x is minus cos x minus 3. Again there exists at least one x for which it is true. And option B is f of x equals e to the power x. So there exists at least one x. So there may exist at least one x for this. There may exist is there is the option in the first part, and fx is a class of polynomial. तो अब क्लियरली देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को सबसे पहले तो ये फील करना होगा जो हाउ टू क्लब द इन्फॉर्मेशन एफ एंड एफ डैश एक्स. सो आई कैन डिफाइन एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स इज साई ऑफ एक्स. लेकिन ऐसा डिफाइन करने से कुछ खास, ठीक है ना, गेन तो हुआ नहीं यहाँ पे, गेन तो हुआ नहीं. तो अब कुछ ऐसा फंक्शन है जिसको हम सोचे सो दैट इट ब्रिंग्स एफ एंड माइनस एफ डैश एक्स. इन यस्टरडेज लेक्चर्स ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आई टोल्ड यू आप एफ इक्वल टू एफ डैश को सॉल्व करो तो ये एफ डैश बाई एफ इक्वल टू सम 1 इंटीग्रेट करो तो लॉग एफ इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. सो एफ इज ई टू द पावर एक्स प्लस समथिंग, मतलब ई का पावर एक्स और ई का पावर लैम्डा एक्स उस टाइप का कुछ फील्ड दे रहा है. तो यहाँ पे इफ आई डिफाइन ई का पावर माइनस एफ ऑफ एक्स एज साई ऑफ एक्स, तो आप देख सकते हो दैट मोटिवेशन गिव्स इसका डेरिवेटिव ई का पावर माइनस एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स. तो यहाँ से तो कुछ नहीं हुआ. ठीक है. तो फिर आउटफिट डिफाइन करते हैं. अगर मैं ई का पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स डिफाइन करता हूँ साई ऑफ एक्स, तो साई डैश एक्स विल गिव ई का पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एंड प्लस ई का पावर माइनस एक्स को छोड़ो एफ डैश एक्स. तो नाउ वी सक्सीडेड इन आवर अटेम्प्ट एफ डैश एक्स माइनस एक्स. तो क्लियरली देखो साई डैश एक्स बिकेम दिस. नाउ वी नो एफ डैश एक्स minus f of x is always less than equal to 0. It means psi dash x will be less than equal to 0. क्यों? क्योंकि e का पावर minus x is anyway strictly positive. So psi I can tell psi is a strictly decreasing function. ठीक है. Psi is a strictly decreasing. तो अब आप देखो अब अगर पॉलिनोमियल है कुछ भी, psi of x is कोई भी पॉलिनोमियल है, तो फिर हम यहाँ से क्या बता सकते हैं. साई डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. तो साई जीरो का वैल्यू कितना आया अपने पास एफ ऑफ जीरो. ठीक है. एंड आई नो साई डैश इज ऑलवेज लेस देन जीरो. तो सपोज इफ साई जीरो इज समथिंग, साई जीरो एफ ऑफ जीरो इज लेट से अगर जीरो पे 1 हो गया. ठीक है. तो ये तो ऑलवेज छोटा ही होने वाला है. ठीक है. बिकॉज इफ साई एक्स इज
decreasing. So I can tell psi x will be less than psi 0. ठीक है, तो अब देखो फंक्शन अगर मान लो मेरा सपोज यहाँ पे 0 पे ही है, 0 पे सपोज इफ इट इज गिविंग पॉजिटिव वैल्यू विद नेगेटिव स्लोप, देन इट्स फाइन बिकॉज देन इट satisfy the equation f of 0 is greater than equal to f dash 0 because anyway f dash is negative, f 0 is positive. ऐसा भी फंक्शन हो सकता है, या तो 0 पे इक्वल टू 0 स्लोप आ जाए, पॉजिटिव एंड 0 स्लोप. सो अगेन एफ ऑफ 0 इज पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज फाइन. बट व्हाट इफ 0 पे इट्स कम्स नेगेटिव and then positive slope? So let's say f of 0 becomes some negative value and the slope of graph is this I am talking about f of x. तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 पे नेगेटिव आ गया और स्लोप पॉजिटिव है अगर, तो ये इनिशियल कंडीशन को ही वैलिडेट कर देगा, राइट. नेगेटिव इज ग्रेटर देन पॉजिटिव पॉसिबल नहीं. अच्छा 0 पे नेगेटिव आ जाए और स्लोप नेगेटिव हो, ये पॉसिबल है? अगर 0 पे नेगेटिव आ जाए और स्लोप नेगेटिव हो, सो वी हैव नेगेटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव, तो ये दिस इज़ पॉसिबल. ठीक है, मतलब 0 पे नेगेटिव आंसर आए एंड इट्स डिक्रीजिंग, तो ये फिर पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है. तो यहाँ से व्हाट वी कैन कंक्लूड, तो वी नो लाइक साई ऑफ एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन. इसका मतलब साई ऑफ कोई भी एक्स जो होगा दैट विल बी लेसर देन साई ऑफ 0, मीन्स ई का पावर माइनस एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज लेसर देन इक्वल टू एफ ऑफ 0. ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स जो होगा विल बी लेसर देन इक्वल टू एफ 0 इंटू ई का पावर एक्स. तो यहाँ से अगर कोई डेफिनेट कंक्लूजन हम नहीं निकाल सकते, जो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव भी होगा या फिर नेगेटिव भी होगा. ठीक है, तो यहाँ से कोई डेफिनेट कंक्लूजन आप ड्रॉ नहीं कर सकते. अच्छा अगर मैं x को इन्फिनिटी पे कर दूं, अगर मैं x को इन्फिनिटी कर दूं तो साई ऑफ x जो होगा, ठीक है, x अगर इन्फिनिटी पे चले जाए और साई ऑफ लेट से एनी x हो जाए, सो आई नो साई ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू साई ऑफ इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट. अब व्हाट इज साई ऑफ इन्फिनिटी? साई ऑफ इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा ओपन नंबर का, मीन्स साई ऑफ x शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब यहाँ से ये क्राइटेरिया भी है, इन्फिनिटी पे जाके देखो, यहाँ से साई ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब ई का पावर माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब ई का पावर एक्स इज पॉजिटिव, सो एफ ऑफ एक्स शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो आप देखो, अब यहाँ से हम बोल सकते हैं पक्का ये डायग्राम गलत है. ठीक है, अब ये डायग्राम भी गलत है, ये डायग्राम भी गलत है, तो एफ ऑफ एक्स को पक्का, एफ ऑफ एक्स को पक्का का पक्का पॉजिटिव होना ही होगा. मीन्स वो पॉलिनोमियल का ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जा सकता है. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था. तो एफ ऑफ एक्स नेगेटिव तो ये पॉसिबल ही नहीं है कोई एक्स के लिए. अगेन माइनस साइन एक्स माइनस 2 विल ऑलवेज बी लेस देन 0, ये भी पॉसिबल नहीं है. ये भी cos x इवन इफ इट इज -1 स्टिल इट विल गो टू -2, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. एफ ऑफ एक्स ई का पावर एक्स ये हो सकता है, मे बी है, तो ये पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? तो मान लो आपने पास अगर कोई पॉलिनोमियल्स ऐसे हो भी गए, ठीक है, तो फिर ई टू द पावर एक्स तो इसको 2 बार कट कर ही सकता है, या फिर 1 टाइम्स कर ही सकता है, या फिर कोई दूसरा ज़्यादा पॉलिनोमियल ऐसा है 4 डिग्री, ये भी 3-4 बार कट कर सकता है. ठीक है, तो यहाँ से ये भी अगर आपके पास ये ऑड पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि ऑड पॉलिनोमियल होगा तो एक ना एक बार तो उसको नेगेटिव होना ही होगा, तो एटलीस्ट 1 रूट गारंटी हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे व्हेन यू विल टेक, देन डेफिनेटली यू कैन कंक्लूड. अब 0 पे कंक्लूजन नहीं कर सकते हो, 0 पे इट वाज नॉट सफिशिएंट टू कंक्लूड एनीथिंग. ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट थॉट प्रोसेस.
अब चलो एक और क्वेश्चन जो कि इंटीग्रल इक्वेशंस है एंड विच इज़ very favorite for JEE Advanced. Last time also they have asked, although that became very easy, but I still questions वो पूछ सकते हैं. Let's say f is a function defined from 0 to 1 to 0 to 1 be a continuous function. So then we have to find that number of roots, or let's say define a set S such that x belongs to R and 2x minus integral of 0 to x f of t dt equal to 1. So you have to find the cardinality of set S where the function जो है that is continuous from 0 to 1 to 0 to 1 means how many x है will satisfy this at least. अब फिर ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आप साई x को डिफाइन कर सकते हो 2x माइनस 0 से x f of t dt माइनस 1. ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो साई ऑफ जीरो क्या होने वाला है. साई ऑफ जीरो इज 0 माइनस 0 टू 0 एफ ऑफ टी डी टी माइनस 1. अब 0 टू 0 अगर कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी फंक्शन हो, वैसे ये 0 टू 1 में ही डिफाइंड है, मतलब विद इन दिस स्क्वायर बॉक्स ओनली वी आर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, तो कैसा भी फंक्शन हो, ये तो 0 टू 0 में एरिया तो 0 ही होने वाला है. तो साई ऑफ जीरो इज माइनस 1, वो तो गारंटी हो गया. व्हाट अबाउट साई ऑफ 1? अब ध्यान से देखो, साई ऑफ 1 आ जाएगा 2 माइनस 0 टू 1 f of t dt minus 1, so which is 1 minus 0 to 1 f of t dt. अब दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि द फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1 to 0 to 1. तो फंक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया क्या पॉसिबल है, ये 1 है. ठीक है, 0 से 1 और 0 से 1 में डिफाइन करेंगे तो फंक्शन या तो ऐसा होगा, तो देखो एरिया इज डेफिनेटली लेस देन 1, मतलब इंटीग्रेशन 0 to 1 f इज लेस देन 1. इफ समवन डिफाइन फंक्शन लाइक दिस डिक्रीजिंग भी, फिर भी जो एरिया होगा लेस देन 1 होगा. इन वन केस एरिया एग्जैक्ट 1 होगा इफ़ यू डिफाइन एफ ऑफ एक्स एज डायरेक्टली 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1 इंटरवल. इसका मतलब ये क्वांटिटी जो होगा या तो ये लेस देन 1 होगा और ग्रेटर देन 1 होगा और इक्वल टू 1 होगा, सॉरी ग्रेटर देन 1 हो नहीं सकता. तो अब साई ऑफ 1 जो होगा या तो लेस देन इक्वल टू 0 होने वाला है. तो अब साई ऑफ 0 बहुत इंटरेस्टिंग है. साई ऑफ 0 इज माइनस 1, 0 पे तो माइनस 1 आने वाला है मेरा आंसर, बट 1 पे इट इज़ लेस देन और इक्वल टू 0. तो 1 पे अगर ये या तो 0 वाला केस पॉसिबल है साई ऑफ एक्स के लिए, और बाद बाकी जैसा ग्राफ आई डोंट केयर. ठीक है, ऐसा ग्राफ हो ऐसा ग्राफ आई डोंट केयर, या फिर 1 पे वो नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा, राइट, क्योंकि ये 1 से छोटा है तो ये पॉजिटिव आएगा. तो या तो 0 होने वाला है नहीं तो पॉजिटिव होने वाला है. अब अगर 1 पे पॉजिटिव आ गया तो एक रूट तो गारंटीड है यहाँ पे 0 to 1 के बीच में. अगर 1 पे 0 आ गया तब पर भी एक रूट तो गारंटी है क्योंकि वो 0 ही आ जाएगा. ठीक है, अच्छा आप बताओ, अब ऐसा कोई बच्चा बोल सकता है जो हाउ कैन वी गारंटी देयर इज एग्जैक्टली 1 रूट, बिकॉज व्हाट आई एम आस्किंग कार्डिनलिटी ऑफ सेट. तो हम एटलीस्ट वाले नहीं पूछे, आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ से तो टिल नाउ आई हैव शोन लाइक एटलीस्ट 1 रूट इज गारंटीड, एटलीस्ट 1 रूट इज गारंटी, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है. जैसे कोई बच्चा सपोज अभी बोलेगा नहीं मैं तो ऐसे ग्राफ को ले जाऊंगा, 1 पे देखो साई एक्स के लिए इज पॉजिटिव और 0 पे नेगेटिव है, तो 1 2 3 रूट्स आ रहा है. या फिर कोई बच्चा बोलेगा नो आई बिकम मोर क्रेजी, हम 1 2 3 4 5 बार रूट आ जाएंगे, तब तो ऐसे करके तुम सोचोगे नहीं इन्फाइनाइटली मैनी रूट है. लेकिन अब यहाँ पे एग्जैक्टली 1 रूट ही गारंटीड होगा. क्यों? क्योंकि 0 से 1 में कोई भी एरिया जो होगा वो स्ट्रिक्टली 1 से छोटा होगा, लिमिटिंग केस में सिर्फ 1 होगा. स्ट्रिक्टली 1 से छोटा क्यों होगा? क्योंकि अगर आप 0 से 1 में इस बॉक्स के अंदर डोमेन तो आपको एग्जीक्यूट करना ही है 0 से 1. तुम कोई भी पॉइंट अगर लो, जैसे ये एरिया ले लो, तो देखो ये 1 से छोटा हो गया. अगर तुम 0 पे कुछ एक पॉइंट ले लिया, 1 पे भी एक्सट्रीम पे ही है, तो स्टिल ये एरिया जो होगा वो तो 1 से छोटा ही होगा. इवन इफ यू स्टार्ट्स मेकिंग इट डांस स्टिल एरिया, बिकॉज वी हैव टू बी इन दिस बॉक्स, स्टिल एरिया जो होगा वो लेस देन 1 ही होगा. द ओनली वे एरिया कैन बी 1 व्हेन यू एग्जैक्टली फिल दिस स्क्वायर. अब इस स्क्वायर को फिल करने का एक ही तरीका है यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, जब आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 आ जाएगा. इसका मतलब मेरे पास साई ऑफ एक्स का 2 ही पिक्चर पॉसिबल है, 2 ही पिक्चर पॉसिबल है. या तो साई ऑफ एक्स
फुल एरिया को फिल करने वाला केस ले ले, मीन साई ऑफ एक्स करस्पॉन्डिंग टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो साई ऑफ 1 आपका हो गया 0, मतलब ये एफ ऑफ एक्स के बारे में बोल रहे हैं। जब एफ ऑफ एक्स 1 आ जाएगा तब साई ऑफ 1 0 हो जाएगा, तो 1 पे एक रूट मिल जाएगा, और साई ऑफ 0 तो आपका -1 है, ठीक। या फिर साई ऑफ 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाएगा, तो अब एक बार ही एग्जैक्टली 1 रियल रूट आपको मिलेगा। अब ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन था ना, वो इस कोडोमेन डेफिनेशन में है, ठीक है। ये कोडोमेन और डोमेन का जो डेफिनेशन है, दिस वाज द लाइक द अट्रैक्टिंग पॉइंट इन द ब्यूटीफुल पॉइंट फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये बहुत ही स्मॉल चीज़ों को जेईई एडवांस लाइक टारगेट करते हैं, और आप ये बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से बहुत खतरनाक रैंक दे सकते हैं। ओके, एक्चुअली most of my students, they have already given very dangerously beautiful rank, and we hope like they'll give much beautiful in the upcoming. आप पूछोगे भाई कौन सा रैंक, तो रैंक हमारे यहाँ से अभी जो आया है, आई विल नॉट नेम द कोचिंग, तो उसमें काफ़ी अच्छे रैंक्स हैं। वी हैव मेनी स्टूडेंट्स इन टॉप 100 ऑल्सो, ओके, मेनी इन टॉप 500, thousands and so on. तो ये ऑब्वियस है, इट्स नॉट अबाउट इंस्टीट्यूट, बच्चे में खुद दम होना चाहिए, और सेकंड आपको सही से पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप फील लेके, अल्टीमेट पॉइंट इज फील लेके 1 घंटा आप अगर खेल खेलते हो, लाइक यू गो एंड प्ले, पसीना बहाओ 1 घंटा, दिमाग के वाइब्रेशंस को रिच करो, नारियल पानी पियो, हेल्दी लाइफ स्टाइल जियो, और मज़ा से पढ़ाई करो। खास के मैथमेटिक्स में तो इतना मज़ा आएगा तुमको, ये बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है ना। इट्स लाइक आप एक बार आइडियाज़ समझ लेते हो तो फिर इट्स लाइक अ गेम, वंस यू नो द रूल ऑफ द गेम, फिर गेम खेलने में मज़ा आता है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। आई होप दिस सेशन इज़ मच इफेक्टिव, स्पेशली ये जो मिक्स प्रॉब्लम्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यूजुअली आप ज़्यादा सॉल्व नहीं करते हो, क्योंकि टिल दैट टाइम सिलेबस इन योर इंस्टीट्यूट, और आप जो भी स्कूल या ऑर्गेनाइजेशंस में हो, तो फिर नए बच्चे आ जाते हैं, तो फिर फोकस जो है ना आउट गोइंग स्टूडेंट पे वो कम हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो इन दैट सेंस दिस यूट्यूब लेक्चर्स विल हेल्प यू, और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बहुत अच्छे और यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आप गुड कंटेंट देख सकते हो। लेकिन इस अनफॉर्चुनेट, जब किन्हीं का चैनल अच्छा हो जाता है तो वो तुरंत पे कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए यूट्यूब चैनल्स पे भी, तो आप लोग भी इंस्टाग्राम यूट्यूब का उतना ही यूज़ करो जितना मैं आपको एजुकेशनली वो बेनिफिट कर सके, ठीक है ना। फालतू का यूज़ मत करो अभी फ़िलहाल, इफ़ यू आर सीरियस। एंड आई एम श्योर जो बच्चे सीरियस है वही मेरा चैनल देखते भी हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, क्योंकि आपका एक बेसिक क्यूरियोसिटी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंटेंट है वो तो काफ़ी क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, तो इसको समझने के लिए भी आपका बेसिक्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो सॉल्यूशंस भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन स्टिल आई एम टेलिंग आई विल कम विद द कोर्सेज जहाँ पे मैं 0 लेवल से आपको चीज़ें समझाऊंगा, सो कोई भी एवरेज स्टूडेंट भी उसको आसानी से समझ सके और उसको लगे जो देयर इज़ नथिंग ग्रेट इन डूइंग मैथ्स एट जेईई लेवल। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दीजिए। थैंक यू।